Hello friends, the topic for this video is waiting lines or queues. First of all, what are waiting lines? Waiting lines are very common in service industry as well as in the product industry. Now, why the waiting lines arise? Waiting lines क्यों होती हैं? Because there are many a times mismatch between the demand and supply. Sometimes the demand is very high and the service provider does not have that much capacity to supply. So that is why waiting lines are there. The people who are going to take the service, the rate is very high, but the people who are giving the service, their number may be less. So that is why waiting lines are designed. So waiting lines are the end result of today's fast-paced economy because people go for taking the service. So these waiting lines have to be managed. इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. सो अ स्पेशल टेक्निक इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द बैलेंस बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस taker can be maintained. So the waiting lines evaluate the ability of the service facility. It means how much efficiently you are giving the service. If you are able to manage those lines, you are able to manage the load that is coming on your service, then that is called service management. So waiting lines are very important, especially in the service sector. Now, what are the features of this queuing system? What is the queuing system? How you manage the waiting lines? So कुछ important points हैं, कुछ important aspects हैं that we have to consider. First is service management. Now service management is very important. As we already discussed, there has to be a balance between demand and supply of the services. So उनको manage करना बहुत ज़रूरी है. So there are different type of strategies available with the service provider जिससे आप demand को manage कर सकते हैं. Second is queue length. आपकी क्यू जो है, जो वेटिंग लाइन है, कितनी लंबी है. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज द सर्विस तो वेटिंग लाइन विल बी वेरी स्मॉल और मैनेजेबल. बट अगर वेटिंग लाइन बहुत लंबी है, दैट विल नेवर एंड. सो इट मीन्स इट शोज द फेलियर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट पॉइंट कम्स द सिस्टम. अब क्यूइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सिस्टम. What is a system? System means the entire thing in which the service taker is entering and then he is taking the service. For example, you go to a bank. You enter into the bank, it means you have entered into the system. अभी आप वेटिंग लाइन में नहीं लगे हैं, बट अभी आप जैसे ही बैंक में एंटर करते हैं, you are there in the system. So system means when you are there, you may be taking the service or you may be in the waiting line. So generally we say system is the combination of waiting line, when you are standing in the waiting line, plus when you are taking the service. तो दोनों में आपको टाइम लगेगा, सर्विस लेने में भी और जब आप वेट कर रहे हैं तब भी. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिस्टम है ये. नेक्स्ट कम्स वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम मीन्स हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग व्हेन यू आर वेटिंग इन द क्यू. जब आप क्यू में खड़े हैं कितना टाइम आपको लग रहा है, उसको वेटिंग टाइम कहेंगे. देन इज आइडल टाइम. फॉर हाउ मच टाइम योर सर्विस प्रोवाइडर इज़ फ्री. कई बार क्या है कि आप सर्विस लेने के लिए कस्टमर नहीं है एंड वेटिंग लाइन इज़ देयर, सो एंड द सिस्टम इज़ लाइक आइडल, सो उसको बोल रहे हैं idle time. Then is arrival pattern. Arrival pattern means in which pattern the customers are arriving. So arrival pattern regular भी हो सकता है, irregular भी. Sometimes customers are arriving regularly, sometimes customers are arriving randomly. Service pattern, it is generally fixed. It means किस रेट पे आप सर्विस दे रहे हैं, एक घंटे में कितने कस्टमर्स को आप सर्विस दे देते हैं. So most of the times this is fixed because you can control the service pattern but you cannot control the arrival pattern of the customers. Next point is principles. Whenever you are dealing with the queuing system, managing waiting lines, you have to consider certain principles. First is there should not be any confusion. Customer should be very much clear कि आप कैसे सर्विस दे रहे हैं. So your conceptual model, your operations should be very much clear cut to the customers. Second is you have to make the wait very appropriate. It should be clear कि जो आप वेट करा रहे हो कस्टमर्स को, it is unavoidable. They will have to wait. For example, कोई ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है, सो यू हैव टू जस्टिफाई द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द फॉग, बिकॉज ऑफ द वेदर, द ट्रेन इज़ गेटिंग लेट. देन नेक्स्ट इज व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स. यू हैव टू असेस दैट. सो यू हैव टू जस्ट असेस द इमोशनल स्टेट ऑफ द कस्टमर्स. Accordingly, you have to design your queuing system. Then is whenever the customer is waiting, you have to occupy their minds. Don't leave them just free. Give them something to read or something to do so that they will be able to manage the time of wait. So people would not mind if they are standing in the queue but their mind is occupied. So ये principles को mind में रख के ही आपने queuing management करना है.
देन इज अब क्यूइंग सिस्टम चलता कैसे है, दिस इज़ वेरी सिंपल, वी ऑन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर पहुंचेगा सर्विस लेने के लिए, क्यू में लग जाएगा, लाइन में लगा, उसको सर्वर ने सर्विस दी, सर्विस लेने के बाद वो आउट हो गया। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम। अदरवाइज क्यूइंग सिस्टम डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम। So the same thing we are saying again, there is an input process, then you enter into the queue, there is an order in the queue, then you go to the service facility, take the service and then you exit. अब इन components को one by one हम एक बार देख लेते हैं। Whenever you are entering the waiting line, the first point is input process. Input process का मतलब है कि आप किस तरह से लाइन में आए, that is arrival pattern. We discussed कि customers finite भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बिकॉज कस्टमर का अराइवल पैटर्न कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सो इट कैन बी फाइनाइट और इट कैन बी इनफाइनाइट। सो कस्टमर्स रेगुलरली भी आ सकते हैं, कंटिन्यूसली इरेगुलर पैटर्न से भी आ सकते हैं। देन व्हेन द कस्टमर हैज़ अराइव यू हैव टू गिव देम द सर्विस। अब आप उनको सर्विस किस ऑर्डर में देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट समटाइम्स द प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द कस्टमर्स। समटाइम्स जिनको बहुत कम टाइम लगने वाला है उनको सर्विस दे सकते हो। सो क्यू को डील करने के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। सो दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस फर्दर इन द क्यू डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज सर्विस आउटलेट्स। इट इज़ वेरी कॉमनली नोन एज सर्विस चैनल्स। अब आप सर्विस कैसे दे रहे हैं, हो सकता है आप सीरीज़ में सर्विस दे रहे हैं। सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, पहले कस्टमर्स ने फेज़ 1 में सर्विस लिया, देन फेज़ 2 में। दिस इज़ एप्लीकेबल व्हेन देयर आर different phases in a service, or there can be some parallel services, same services parallel channels के through भी दे सकते हैं, या फिर आप different services different channels के through mixed services दे रहे हैं। So exit once you have taken the service from service outlet, then the customers will be leaving the system. So ये सारा process है जिसके through customer जो है वो service लेगा। So generally very simple queues are there in every system. Now नेक्स्ट कम्स क्यू डिसिप्लिन्स। अब क्यू को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। सो क्यू को हम कैसे सर्विस देंगे, बिकॉज कस्टमर्स तो आए जा रहे हैं, सो हाउ वी विल गिव देम सर्विस। सो डिफरेंट डिसिप्लिन्स फॉलो होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम FIFO इज़ अप्लाइड, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व्ड। जो पहले आया उसको पहले सर्विस दोगे। सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द सर्विस टेकर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। इससे ऑर्डर बना रहेगा, जैसे ही कस्टमर अराइव हुआ जो पहले आया उसको पहले सर्विस। नेक्स्ट इज़ लास्ट इन फर्स्ट सर्व्ड। जो लास्ट में आया आप उसको सर्विस दे रहे हो। जनरली इट कम्स टू आवर माइंड कि आप रिवर्स ऑर्डर में सर्विस दे रहे हो। इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड, द कस्टमर्स विल नॉट लाइक इट। सो ये जो मेथड है जनरली क्या है, स्टॉक्स के केस में अप्लाई होता है। जो स्टॉक बाद में आया उसको पहले यूज़ कर लिया, या हम कहें अगर कोई स्टॉक पेरिशेबल नेचर का है, ख़राब हो जाएगा, उसको पहले यूज़ कर लिया। सो जनरली जो है इन द ह्यूमन बींग्स वी कैनॉट अप्लाई LIFO मेथड, इट इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ स्टॉक्स। देन इज़ SIRO, इट मीन्स सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट यूज़ एनी पर्टिकुलर लाइक सिस्टम, रैंडमली जो भी कस्टमर आगे आ गया उसको आपने सर्विस दे दिया। सो कस्टमर्स आर सिलेक्टेड वेरी रैंडमली। देन इज़ SIP, दैट इज़ सर्विस इन प्रायोरिटी। नाउ सर्टन कस्टमर्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर। नाउ प्रायोरिटी, कुछ कस्टमर्स को ज़रूरत है किसी सर्विस की, सो दे कैन बी गिवन द प्रायोरिटी। सो और दे वुड हैव मेड एडिशनल पेमेंट और दे हैव सम कनेक्शंस। सो सर्विस है प्रायोरिटी वाले कस्टमर्स को पहले देते हैं, बाकी को बाद में। सो ये कुछ क्यू डिसिप्लिन्स हैं जो कि सर्विस मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मार्केटिंग की क्यूज़ को डील करने में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कम्स वेटिंग लाइंस कैसी हो सकती हैं। अब जो वेटिंग लाइंस हैं, आपकी क्यूज़ हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो इसको सर्विस सिस्टम भी कहते हैं। वो कैसे हो सकती हैं, सबसे पहला है जनरली वेरी सिंपल सिंगल क्यू। एक सिंगल क्यू में कस्टमर आ रहा है, सर्विस लेता है, उसके बाद सर्विस लेने के बाद बाहर चला गया। सो इसको हम FIFO मेथड कह रहे हैं। FIFO मीन्स जो कस्टमर पहले आया क्यू में लग गया एंड द कस्टमर हैज़ टेकन द सर्विस। सो जनरली यही अप्लाई होता है। सो सिंगल क्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। नाउ समटाइम्स द इंडिविजुअल्स दे आर नॉट अरेंज्ड इन लाइक प्रॉपर फॉर्मेट। तो एक क्यू में नहीं खड़ा करा हुआ आपने उनको, बट इन अ कर्व्ड फैशन, तो मतलब कॉम्प्लेक्स सी रो लग रही है। या फिर आपकी रो कॉम्प्लेक्स कब हो सकती है, जब आपकी सर्विस बहुत सारे फेजेस में दी जा रही है। फेज़ 1 लिया, देन फेज़ 2 लिया, तो ये है आपकी सिंगल क्यू ही, बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स क्यू। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्यूज़ कैन बी मल्टीपल क्यूज़। पहले हमने किया सिंगल क्यूज़, ये हम सिंगल क्यू के ऊपर चल रहे हैं। दिस वॉज द सिंगल क्यू। नाउ वी हैव मूव्ड अहेड टू मल्टीपल क्यूज़। अब कुछ सर्विस सेंटर्स में क्या है, मल्टीपल क्यूज़ बनी होती हैं। इफ़ यू गो टू अ बैंक, देर आर मल्टीपल क्यूज़
डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शंस, डिपॉजिट अलग हो रहा है, विदड्रॉल अलग हो रहा है, इफ़ यू वांट टू सबमिट द चेक्स देयर इज़ अ डिफरेंट क्यू, सो मल्टीपल क्यूज़. समटाइम्स मल्टीपल क्यूज़ डील विद द सेम फंक्शन ऑल्सो. मल्टीपल क्यूज़ हैं पर सारे सेम ही काम कर रहे हैं, but sometimes multiple queues deal with the multiple functions. So multiple queues are like generally complex. So waiting lines को आप ज़्यादा अगर लग रहा है आपको बहुत लंबी waiting lines हैं, these can be managed with the help of token system also. Now the customers who are standing in the queue, their behavior is very different. Sometimes the customers are very patient, sometimes customers are impatient. So the customer behavior in the queues can be divided in these 4 points. First is barking. What is barking? Some customers show reluctance for the waiting lines to join. They don't join any waiting lines, और बीच में से कहीं पर भी क्यू में जंप करा, then they reach the service center. This is called barking. So others who are standing in the queue, they may not like it. But ये customers क्या करते हैं barking में? They do not want to join any like queue. ठीक है, so they will keep on jumping. Then is collusion. Collusion का मतलब है one customer represent the group of customers. जैसे आप कभी भी tickets लेते हैं in the theaters. So instead of going, all the customers will not go. All the friends will pool up and they will send one of them to buy the ticket. So it is called collusion. So एक customer जो है वो ग्रुप को represent कर रहा है. Third is jockeying. Jockeying means the customer has already joined a queue. He leaves the queue and joins another queue. तो एक क्यू में खड़ा है कस्टमर, बट बीच में उसको लग रहा है दूसरी क्यू छोटी हो रही है, वहाँ पर चला गया, देन फर्स्ट क्यू में फिर से वापस आ गया. सो दिस कस्टमर कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्यू टू अदर क्यू. इसको बोलते हैं जॉकिंग. देन इज रैनेजिंग. रैनेजिंग मीन्स व्हेन द कस्टमर लूजेज द पेशेंस, और वो क्यू को लीव कर देता है और सर्विस भी नहीं लेता. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स दैट कस्टमर्स जनरली शो. नाउ देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डील विद दिस क्यूइंग सिस्टम. तो अगर आपने क्यू मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है, सो देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट इज ऑपरेशनल लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है. वट एवर order you are following, LIFO, FIFO, there has to be certain logic behind it so that you can justify the customers. Then reservation system is the best system. आप customers को बोलो कि पहले अपना reservation करा लो so that queue में कोई problem ही ना हो. जिनका reservation पहले है, they can have the service. Then is customer differentiation. You can divide the customers in different groups, who have paid more, who have paid less. The customers who are important, who are not that important. एमरजेंसी, नॉट एमरजेंसी. सो आप कस्टमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सो डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंगली आप क्यू को मैनेज कर सकते हैं. देन इज यू हैव टू एडुकेट एंड इन्फॉर्म द कस्टमर्स. वट एवर सिस्टम यू आर फॉलोइंग मे बी जेन्युइन, नॉन जेन्युइन, यू हैव टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स. व्हेन यू आर इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट योर सिस्टम, इट विल बी मेकिंग देम पेशेंट. देन कीप द कस्टमर बिजी. ये हमने कर लिया. कस्टमर जब भी क्यू में लगेगा उसको बिजी रखना है आपने. एंड लोअर एंग्जाइटी. कस्टमर्स को आपने इस तरह से मैनेज करना है कि उनका एग्जाइटी लेवल हाई ना हो. इट मीन्स क्यू को कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कराना. देन अटैच वैल्यू टू द सर्विसेज. अगर आपकी सर्विस में पावर है, देन कस्टमर्स विल नॉट बी लाइक सेइंग कि दे विल नॉट वेट. इफ़ द सर्विस इज़ रियली गुड, customers do not say anything for waiting also. So this was all about the queuing system, managing waiting lines. Whenever there are waiting lines, it is unavoidable, we all know, because the service providers may be less, service takers may be high, but these waiting lines have to be managed properly. Thank you so much.